Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, today we are going to start the second chapter of Vista's book, The Tiger King, written by Ramaswamy Iyer Krishnamurthy, whose pet name is Kalki. Ramaswamy Krishnamurthy was born on 9 September 1899 and was died on 5 December 1954. And he was an Indian writer, journalist, poet, critic, and Indian independence activist. He was named after Kalki, the 10th and the last avatar of the Hindu god Vishnu. His writings include over 120 short stories, 10 novelettes, 5 novels, 3 historical romances, editorials and political writings, and hundreds of film and music reviews. You can see the picture of Krishnamurthy on a stamp of India of 1999. Students, as you can see the time period of Kalki, and in this period in India, there were so many princely states existed, and the act of Sikar, the hunting particularly of tiger, was very prominent and prevalent in that particular time period. It was something which was related to one's bravery and pride. Means killing a tiger was a matter of showing the bravery, the wealth, and the pride by someone. This act of hunting tiger was started by Akbar in 16th century, and its patronage were carried on to the succeeding kingdoms. Even this illegal act of killing tiger was flourished in British era also. So students, now let us start reading this chapter line by line, and I will give you the meaning of difficult words also. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General Khiledar Major Satavyagrah Samhari Maharaja Dhiraj Vishwa Bhuana Samrat Sri Jilani Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. Maharaja of Pratibandhapuram is the main hero or is the leading character of this story, to whom so many adjectives related to bravery has been given, like Jamidar General, Khiledar Major, etc. But in short, he is also known as Tiger King. महाराजा प्रतिबंधपुरम इस कहानी के मुख्य किरदार हैं और उनको तमाम बहादुरी से संबंधित उपाधियों से नवाजा गया है, जैसे कि जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सताव्याग्रह समहर्षि महाराजा धीराज, सर जिलानी जंग बहादुर। लेकिन इतने बड़े नामों के अलावा एक उनका छोटा सा भी नाम है जिसको कि हम टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। आई हैव come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं आगे बढ़ के बड़े उत्साह के साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। ऐसा नैरेटर कहता है इस स्टोरी का। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. और मैं बिल्कुल भी इस बात का दिखावा नहीं करूँगा कि मैं इसके पीछे की कहानी कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा बताऊँगा, अब यह बताने का प्रयास करूँगा और फिर पीछे हट जाऊँगा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं अगर एक बार ठान लिया हूँ कि इसके पीछे की कहानी आपको बताऊँगा तो मैं बता के ही रहूँगा।
Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. और यहाँ तक कि स्टुका बॉम्बर भी मुझे मेरे इरादों से पीछे नहीं कर सकता. स्टुका bombers were fighter planes which were prominent in Second World War, and Germany was the country who were the owners of this fighter planes. तो नैरेटर कहता है कि स्टुका बॉम्बर जैसे फाइटर प्लेन्स जिसका निशाना बिल्कुल अचूक और अभेद होता था, वो भी मुझे मेरे इरादों से नहीं डिगा सकते. द स्टुका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. और यहाँ तक कि जो स्टुका बॉम्बर्स हैं वो भी मेरे इरादों से घबरा के मेरे रास्ते से हट जाएंगे. Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Imperative means something which is necessary, something which is important. तो right at the start मतलब कि शुरुआत में ही यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ये नाम है टाइगर किंग, इसके पीछे का महत्व क्या है, इस नाम का महत्व क्या है. What is the vital importance of the Tiger King? Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. और जो लोग भी इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ रहे हैं वो ऐसा महसूस करेंगे कि एक बार जानने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद उनके अंदर इस बहादुर इंसान से फेस टू फेस मिलने की इच्छा जागृत हो रही है. They will feel the natural desire to meet a man of this kind. But there is no chance of its fulfillment. लेकिन ये इच्छा ही रह जाएगी, ये पूरी नहीं होने वाली. As Bharat said to Rama about Dasratha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. अब यहाँ पे जो नैरेटर है इस स्टोरी का वो एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर राम और भरत के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से भरत ने राम को बताया कि उनके पिता दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे. ठीक उसी प्रकार इस बात को बताते हुए नैरेटर ये कहना चाहता है कि अगर आपके मन में ये इच्छा है कि आप टाइगर किंग से मिलें तो वो पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस प्रकार भरत ने राम को बताया था कि अब उनके पिता दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक उसी प्रकार मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि टाइगर किंग भी अब इस दुनिया में नहीं रहे. तो आपका उनसे मिलने की जो इच्छा है वो संभवतः पूरी नहीं होगी. इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड. तो जैसा कि मैंने बताया कि टाइगर किंग अब मर चुके हैं. द मैनर ऑफ हिज डेथ is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उनके मरने का जो तरीका था वो भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. जब आप सुनेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है इसमें बढ़ता ही जाएगा. हालांकि इसके पीछे क्या कारण है इस पर से पर्दा तो इस कहानी के अंत में ही उठना चाहिए. उनके मरने के पीछे जो सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट था वो ये था कि उनके जन्म के समय ही एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन जो टाइगर किंग है वो वास्तव में मर जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, जो भी जन्म लेता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, एक ना एक दिन उनको मरना ही होता है. तो ये कहना कि टाइगर किंग ने जन्म लिया है लेकिन एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. ये तो होना ही था और ये होगा ही.
The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But अब जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं कि जब ये लड़का बड़ा होगा, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, योद्धाओं का योद्धा, हीरोज़ ऑफ हीरोज़, चैम्पियंस ऑफ चैम्पियंस। लेकिन अब इतना कहते हुए जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपनी बात को यहीं पे रोक देते हैं। दे बाइट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, और उन्होंने अपने होठों को दबाया और कुछ निकलने का प्रयास किया। ये जो गैस्चर है, होठों को दबा के कुछ गले से, थ्रोट से निकलने का प्रयास करना और चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन ले आना, ये तब होता है जब हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें घटित हों जिस पे कि हमें बिल्कुल भी विश्वास न हो, जिस पे कि हम बिल्कुल भी विश्वास न कर सकें। तो कुछ इसी तरीके का एक्सप्रेशन ये एस्ट्रोलॉजर्स दे रहे थे, या वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो दे रहे थे। When compelled to continue, the astrologers came out with it. और जब दबाव दे के एस्ट्रोलॉजर से पूछा गया तब उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। यह एक ऐसा सीक्रेट है जिसको बिल्कुल भी रिवील नहीं किया जा सकता, जिसको बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता किसी को। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो अब हालांकि हम पे दबाव बनाया जा रहा है इस सीक्रेट को बताने के लिए, तो हम बताते हैं कि ये जो बच्चा इस नक्षत्र में जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसमें कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं है, जो भी जन्म लेता है उसको मरना ही होता है। तो एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और तभी अचानक से एक मिरेकल घटित होता है, एक चमत्कार घटित होता है। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट्स। और तभी उस 10 दिन के बच्चे के होंठ हिलते हैं और उसके मुंह से ये बात निकलती है कि ओ वाइज प्रॉफिट्स। एवरीवन stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. ट्रांसफिक्स्ड मतलब कि जब आपके सामने कुछ स्ट्रेंज सा घटता है उसको देख के आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, यानी कि आपकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाती है, आप अवाक रह जाते हैं और आपके शरीर में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, आप बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। तो सबके सब ऐसा सुन के या ये दृश्य देख के बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। दे लुक वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। एक दूसरे को घबराहट भरी नज़र से देखते हैं और अपनी पल के झपकाते हैं। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ये मैं हूँ जिसने आवाज़ निकाली है, जिसने बोला। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the word so clearly। और दोबारा जब उस बच्चे ने बोला तब डाउट्स बिल्कुल भी नहीं रह गए लोगों के मन में, ये क्लियर हो गया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intentionally at the baby। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स थे उसने अपने चश्मे को हटाया और बच्चे की तरफ घूरते हुए देखा। All those who were born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in the little squeaky voice। जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो बस ये बताओ कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो वो कैसे होगी। और इस तरीके से उस रॉयल इन्फेंट ने ये बात कही। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज एंड वॉन्डर। और आश्चर्यजनक रूप से या आश्चर्यचकित होते हुए चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने उंगली को अपने नाक पर रख लिया। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। Not only that, it also raises intelligent questions, incredible, rather like the bulletins issued by the war than facts।
और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरीके से ये 10 दिन का बच्चा अपनी ज़ुबान खोलते हुए इस तरीके से बोल रहा है और वो भी इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. और इस तरीके से चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपने नाक के पर से उंगली को हटाया और उस छोटे से प्रिंस की तरफ घूर के देखने लगा। The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. और इस तरीके से चीफ एस्ट्रोलॉजर ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि ये बच्चा बुल के घंटे में यानी कि एक ख़ास नक्षत्र के समय में जन्म लिया है और जो नक्षत्र है और जो टाइगर है वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और इसी वजह से इस बच्चे की मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस स्टोरी वी विल cover up in our next video. Till then, have a good day.